morning, everyone. How are you? Ready for this class? Whether now I am audible? Okay. So let's start with our topic. We have discussed in this chapter till now that how the company, for getting revenue, it didn't give any attention to the agriculture. Okay, but later on it devised some three revenue system for collecting revenue, and then it focused on the crops for Europe. Okay, then it focused that how it can carry the crops that were needed in the industries in Europe. So it focused on the crops, many crops, but mainly that we have studied in this chapter, that is indigo. That how they focused on indigo, how indigo was cultivated. We have discussed two methods of indigo cultivation. Okay, first was the niche system, and the second system we have discussed, that is Rayoti system. So in niche system, the land on which this indigo crop was grown, that was belonging to planters. And in this Rayoti system, the land on which indigo was grown, that was of the peasant itself, and the contract was being signed with the village headman. Okay, with village headman, the contract was being signed for this plantation. But slowly, this indigo plantation could not last long. The peasants, they started rebelling it. They started revolting, protesting against. Why? Peasants ने इनका protest करना क्यों शुरू कर दिया? कि why peasants start protesting? कि we know the all company that was doing for its profit only. It was focusing on the profit of company only. It has nothing to do with the condition of farmers, with their development, with their profit. Clear? So two systems that has been adopted by the indigo planters for getting this crop from India. But both these systems, first niche system, in this planter used to suffer, and in this Rayoti system, peasants used to suffer. And then there is the next point that we have to do, the blue rebellion. Rebellion means peasants started revolting. ठीक है, peasants ने revolt करना शुरू कर दिया. तो ब्लू रिबेलियन, तो जो peasants थे, they were now against the planters. ठीक है, they were not using the indigo crop now. ठीक है, they were not ready to grow the crop. अब क्यों ready नहीं थे? ठीक है, there were many reasons. अब वो ready नहीं थे. They were asking कि they have no profit. कि जब से उन्होंने indigo को ग्रो करना शुरू किया है, they have not received any profit at all. Because profit क्यों नहीं हुआ? ठीक है, उनको no profit, उनको जब से they have started growing indigo, उनको कोई profit नहीं हुआ है. And profit क्यों नहीं हुआ? Because company that was paying very less prices for the crops, जो भी वो crops grow करते थे, उनके लिए उनको बहुत लेस प्राइस पे किया जाता था. ठीक है, और एक वो जो
क्योंकि पहले तो लोन जो प्लांटर था वो उनको लोन देता था, ही वाज गिविंग लोन फॉर ग्रोइंग द क्रॉप, लेकिन लास्ट में अब लोन कैसे, कि वो कहता है कि आई विल प्रोवाइड यू सीड, आई विल प्रोवाइड यू मनी फॉर ग्रोइंग सीड, आई विल प्रोवाइड यू व्हाटएवर यू वांट फॉर ग्रोइंग द इंडिगो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो वो मनी देता था, लेकिन एट द लास्ट व्हेन क्रॉप वाज ग्रोन, ठीक है, then crop is produced, then he has to pay the back money to the planter, उसको वापस देनी पड़ती थी मनी। तो इस तरह जो वो प्लांटर था वो प्लांटर he was trapped in this system, ठीक है, वो एक सिस्टम में ट्रैप हो गया था कि पहले वो लोन लेगा फिर वो रीपे करेगा, he was continuously in loss, वो continuously लॉस में था, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। सेकेंडली जो प्लांटर्स थे वो उनको बहुत ही कम जो उसका लेस प्राइस जो था इंडिगो का वो पे कर रहे थे, जबकि यूरोप में तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है। तो एक साइकिल ऑफ लोन्स, इसमें भी जो फार्मर्स थे दे हैज बीन ट्रैप्ड इन दिस साइकिल ऑफ लोन्स, ठीक है, जिसमें कि वो फंस गए थे। तो इस तरह धीरे धीरे पीजेंट्स जो थे दे वर अगेंस्ट द प्लांटर्स, और क्या हुआ फिर जो प्लांटर्स थे दे वर आस्किंग पीजेंट्स कि आप मोर फर्टाइल सॉइल पे ही इंडिगो को ग्रो करो, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिगो वेयर द इंडिगो इज ग्रोन, so the fertility of the soil loses very soon, the fertility of the soil loses, so then they say कि you have to grow indigo in the very fertile soil, but the planter he wants to grow rice on the fertile soil because rice that was the most needed crop than the indigo, ठीक है, राइस तो ज्यादा उसकी जरूरत की फसल है, वो तो उसको ग्रो करनी ही है, and he used to want to grow rice on the very fertile land, ठीक है, वो उसको ग्रो करना चाहता था। so these were the reason, और वो किसको प्रेफर कर रहा था, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो गया, he was prefer to grow rice, वो राइस को ग्रो करना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए स्लोली जो थे, जो डिफरेंट पीजेंट्स थे, they were against the planters, उन्होंने प्लांटर्स का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, they were against, ठीक है, और धीरे धीरे उनको रिफ्यूज करना भी शुरू कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया कि वी विल नॉट नाउ ग्रो द इंडिगो, हम इंडिगो अब ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे ये रिबेलियन कैसे बन गई कि अर्लियर भी वो थे, पहले भी पीजेंट्स के ऊपर काफी सफर हो रहा था, उनको बहुत लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, ठीक है, पहले भी सेम सारी चीजें हो रही थी, लेकिन तब तो पीजेंट्स ने रिबेल नहीं किया, तब पीजेंट्स ने रिवॉल्ट नहीं किया, व्हाई नाउ दे वर रिवोल्टिंग, अभी क्यों रिवॉल्ट कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज ये बात कब की है, 1859, अब 1859 में दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग, उन्होंने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया टू ग्रो इंडिगो। अब 1859 से पहले वी विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर, आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट के बारे में, ठीक है, कि 1857 में रिवोल्ट हुई थी, और 1857 में रिवोल्ट जैसे हम कहते हैं ना कि वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट वी हैव डन फॉर गेटिंग आवर इंडिपेंडेंस, क्लियर, तो हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तो दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर आवर इंडिपेंडेंस, तो ये हमारी इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट स्ट्रगल था, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो स्ट्रगल था वो चलता रहा, तो इट मीन्स कि ये हम नेक्स्ट में करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो 1857 के बाद, अब ये कब की बात है, 1859 की, तो लोगों में भी थोड़ा सा, लोगों को लगता था कि हाँ अभी रिवोल्ट हुआ है तो ब्रिटिश जो है वो हमारी बात कुछ सुनेंगे, ठीक है, कि ऐसे नहीं कि प्लांटर्स हमारे ऊपर इस तरह फोर्स कर रहे हैं हमको, और हम नहीं ग्रो करना चाहते तो हमें वो फोर्स नहीं कर सकते, तो उन्होंने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसलिए ये भी उनके माइंड में बात थी। दूसरी, उनको जमींदार का सपोर्ट भी था, ठीक है, जो वहां पे जमींदार थे उनका सपोर्ट भी था इन फार्मर्स को।
अब जमींदार का सपोर्ट कैसे था, क्योंकि अर्लियर जमींदार जो थे, जमींदार की बहुत अच्छी पोजीशन होती थी विलेज में, ठीक है, बट नाउ जमींदार जो विलेज हेडमैन थे, दे हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें विलेज हेडमैन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, तो दे हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट विद दीज प्लांटर्स। तो इस तरह प्लांटर्स की पोजीशन ज्यादा ऊंची हो गई और जमींदार की कम हो गई, तो जमींदार को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारी पावर कम हो रही है। सो दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ पीजेंट्स, तो वो भी पीजेंट्स के साथ मिल गए। तो पीजेंट्स को फार्मर्स का सॉरी जमींदार का सपोर्ट भी मिल गया, ठीक है। अब जमींदार का सपोर्ट भी मिल गया और उनको ये भी लग रहा था कि गवर्नमेंट भी उनको सुनेगी। अब ये उनको कैसे लगा कि गवर्नमेंट भी उनको सुनेगी, ठीक है। यस, बच्चे जो यहाँ पे वो लेस प्राइस पे करते थे, ठीक है, लेस प्राइस पे करते थे क्रॉप्स को, लेकिन जब वो यूरोप में जाते थे तो यूरोप में जाके ज्यादा प्राइस पे वो इंडिगो को बेचते थे टू द क्लॉथ प्रोड्यूसर। दे यूज्ड टू सेल एट हाई प्राइस बट दे वर परचेजिंग एट ए वेरी लो प्राइस, तो ये उनको प्रॉफिट होता था, ठीक है। बच्चे वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और क्लियर करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश अब क्या था यहाँ पे, उस टाइम तो किंग्स का रूल था, ठीक है, किंग्स का रूल था। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले चैप्टर्स में आपने किया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये लड़ाइयां हुई, तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने हरा दिया किंग्स को, उन्होंने किंग्स को हरा दिया। अब किंग्स को उन्होंने हरा दिया है तो जो पावर है वो कंपनी के पास आ गई, जो कंपनी उसमें अर्निंग भी बना ली थी, लेकिन कंपनी ने रूल नहीं किया। रूल उसने क्या किया, उसने सिर्फ पैसे को अपने हाथ में लिया, सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो पावर थी वो अपने हाथ में ली, बाकी किंग नाम के लिए वहां पे था, ठीक है, कि नाम के लिए वो किंग था, लेकिन उन किंग के ऊपर कौन था, वो कंपनी के ऑफिशियल्स, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो धीरे धीरे कंपनी ने अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू किया। अभी ये इस चैप्टर में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कंपनी ने कैसे अपनी ये जो लैंड रूलिंग द कंट्री साइड, कि कंट्री साइड में कंपनी ने अपनी पावर कैसे इंक्रीज की, ठीक है। बाकी हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि कंपनी कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, कि पहले कंपनी थी वो गवर्नमेंट कैसे बन गई, ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि उनको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा था, सारा प्रॉफिट प्लांटर्स को हो रहा था, वो फोर्स कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पीजेंट्स ने इस 1857 रिवोल्ट के बाद उनको भी थोड़ा जोश आ गया कि दैट वी कैन आल्सो रिफ्यूज टू द प्लांटर्स, ठीक है, दैट वी कैन आल्सो प्रोटेस्ट, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऊपर से उनको जमींदार का सपोर्ट भी मिल गया, ऊपर से वहां पे जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने भी वहां पे टूर किया, ठीक है। अब यस बच्चे, आप कल कह रहे थे लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग है वो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लेकिन जो टूर किया था वो किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो लेफ्टिनेंट उस टाइम के गवर्नर थे, तो वो थे फ्रेडरिक जेम्स। तो अगर आपकी बुक में नहीं लिखा है तो नो नीड टू राइट द नेम्स, ठीक है, सिर्फ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर लिख लो। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उनके एरिया का टूर किया, तो उनको लगा कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो हमारे फेवर में है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ऊपर से मैजिस्ट्रेट ने भी नोटिस निकाल दिया, जो उस टाइम के मैजिस्ट्रेट थे, यस एशले, ठीक है, एशले एडन। तो जो उस टाइम के मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी ये नोटिस निकाल दिया, तो मैजिस्ट्रेट ने नोटिस इशू कर दिया। क्या नोटिस इशू कर दिया, मैजिस्ट्रेट ने ये नोटिस इशू कर दिया कि कोई भी प्लांटर जो है वो फार्मर्स को फोर्स नहीं करेगा इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट का भी उनको सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ की रिवोल्ट के बाद थोड़ी गवर्नमेंट भी डरी हुई थी कि सारे फिर से लोग रिवोल्ट ना कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी उस टाइम पे, कंपनी जो थी प्लांटर्स वो फोर्स कर रहे थे, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो अब बिल्कुल रिवोल्ट करने के लिए। अब रिवोल्ट उन्होंने किया कैसे, उन्होंने कंपनी के जो
फैक्ट्रीज थी जहां पे कि इंडिगो बनाई जाती थी, फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जो उनका लोन था वो लोन देने से मना कर दिया। जो कंपनी ने गोमस्ताज रखे हुए थे, ठीक है, आपकी बुक में गोमस्ताज और लाठियाज ये 2 वर्ड है, ठीक है। अब ये गोमस्ताज और लाठियाज क्या करते थे, लोगों से पैसे कलेक्ट करते थे कि जिन जिन का लोन पेंडिंग है, तो वो प्लांटर्स उन्होंने उनको रखा हुआ था कि यू कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम द फार्मर्स। तो लोगों ने उनका भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये ब्लू रिबेलियन जो थी वो बहुत उस बंगाल के एरिया में लार्ज स्केल पे फैल गई। तो गवर्नमेंट ने भी, मजिस्ट्रेट ने भी नोटिस इशू कर दिया कि कोई अब प्लांटर्स जो है वो पीजेंट्स को फोर्स नहीं करेगा। और उसके बाद फिर इंडिगो कमीशन भी बनाया गया, ठीक है। इंडिगो जो कमीशन था वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया। अब इंडिगो कमीशन क्या करेगा, इंडिगो कमीशन की वो सारा अच्छी तरह से सर्वे करेगा, पूरा एनालिसिस करेगा कि किसकी गलती है, किस प्लांटर्स की गलती है कि पीजेंट्स की गलती है, ठीक है। तो इसने क्या एनालाइज किया कि जो गलती किसकी है, वो फॉल्ट किसकी है, फॉल्ट ऑफ द प्लांटर्स। ये जो सारी गलती है ये प्लांटर्स की है, ठीक है। तो इंडिगो कमीशन ने ये सारी अपनी रिपोर्ट पेश की कि दिस फॉल्ट इज ऑफ द प्लांटर्स, ठीक है। तो कमीशन ने भी प्लांटर्स को गिल्टी बताया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये किसी भी तरीके से इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पीजेंट्स। तो पीजेंट्स को कभी भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, इट हैज बीन नॉट बेनिफिशियल। क्लियर। तो इस तरह जो इंडिगो कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है। अब प्लांटर्स जो थे, अब प्लांटर्स क्या है, सो नाउ द प्लांटर्स दे हैव टू लीव द बंगाल। अब प्लांटर्स को बंगाल को छोड़ना ही पड़ना था। क्लियर। तो प्लांटर्स जो थे वो अब किसी दूसरे एरियाज में चले गए। So now all these points are clear. ठीक है, प्लांटर्स दूसरे एरिया में गए, दूसरे एरिया में जब जाके उन्होंने वहां पे इंडिगो प्रोडक्शन स्टार्ट की ना, तो जैसे आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि उन्होंने बंगाल से बाद वो बिहार चले गए, ठीक है। तो बिहार में जाके भी वहां पे भी उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन स्टार्ट की। फिर वहां के लोगों ने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जिसमें कि गांधी जी भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो वो अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे। क्लियर। So this is all about this chapter. So I hope all the points are clear to you. If there is any query, so please write in chat box. Clear. So all these points, now we have to discuss the question answers. Clear. So first we will do Champaran movement. Champaran is a place in Bihar. ठीक है, चंपारण में एक बिहार में प्लेस है, तो वहां पर भी इंडिगो प्लांटर्स चले गए थे। वहां पर उन्होंने जाके इंडिगो प्लांटेशन शुरू कर दी। फिर वहां के भी पीजेंट्स ने रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो वो चंपारण मूवमेंट इन बिहार है, तो वो उस वहां का एरिया है। तो जहाँ के, तो वो डिटेल में नहीं है आपकी बुक में, तो वो आपने नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गांधी जी जब 1917 में वहां पे चंपारण में गए थे, तो वहां पे उन्होंने ये जो मूवमेंट थी तो उसको फिर ये स्टार्ट की थी, चंपारण मूवमेंट। क्लियर। अब ये आपकी जो बुक में सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस थी जिससे कि इंडिगो प्रोडक्शन जो थी वो कोलैप्स हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं, ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। कि ये सारे रीजंस थे ड्यू टू विच द इंडिगो प्रोडक्शन दैट हैज बीन कोलैप्स्ड इन बंगाल। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 3, मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, एंड बी क्विक एंड रेज योर हैंड्स फॉर गिविंग द आंसर। Okay, Nandini? Yes. You can tell the page number also. Otherwise, you can speak the question. Be quick, beta. Yes, Nandini. Yes, bache.
Yes, ma'am. The permanent settlement system was a land revenue system introduced in 1793 by East India Company. Ma'am, features: the amount paid by the zamindars to company was fixed permanently. Zamindars lost their right out the lands whenever they failed to make payments to the company. Okay, good. So the permanent settlement system in 1793, first you can write in 1793, it was introduced by Lord Cornwallis. Then it was fixed revenue system. Rajas, Talukdar, they were appointed to collect the revenue. Okay? And if Zamindar, he was failed to pay the revenue, then his land was seized by the government. Okay? So you can write 4 to 5 points in this system. So there is the next question. The difference between the Mehelwadi system and permanent settlement. Yes, raise your hand for this question. Okay, Akul. Yes. Yes. Number one difference, Mehelwadi system was introduced by Holt Mackenzie in 1822, and the permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis in 1793. And Okay, this is the so first. this is one difference. And the second difference? And the second difference is फर्स्ट डिफरेंस में तो हम नेम बता देंगे कि दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793, ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट, एंड द सेकंड सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882. फिर दोनों को सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया, देयर नेम वी कैन टेल, ठीक है. एंड द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट बेटा? Ma'am, village headmen collected revenue in Mehelwadi system, and the peasants collected revenue in the permanent settlement. Fixed revenue was collected in permanent settlement and revenue was revised periodically. ठीक है, हर कुछ टाइम के बाद उसको रिवाइज किया जाता था in Mehelwadi system. And now the third point of the difference. Then the third point is village headman was given the duty to collect revenue in the Mehel, that is village, in Mehelwadi system, and the peasants were given the duty to collect revenues from the zamindars were asked to collect revenue from the peasants. Yes, in permanent settlement system, zamindars used to collect the revenue, and in this Mehelwadi system, village headmen used to collect the revenue and then giving to the company officials. So these are the three differences. Any other difference you have found? So clear these three differences to all. So now the next question. Yes. Taranya, you can read the next question and then give the answer. First, read the next question. Okay, ma'am. Give two problems which arose with the new Monroe system of fixing revenue. Yes. There are two major problems that arose with the new Monroe system are as follows. In desire to get more revenue from peasants, company fixed too high revenue demand. Due to this, peasants were inside to where, and the peasants started leaving the villages now. They started moving to cities and villages became deserted in many regions. The second reason was that the company imagined that the new systems would make peasants rich, but this did not happen, which was failure for the company. Okay, so you have to give or write all the answers in points. Okay, and first point you can write that the peasants, they were paid very less prices for the crops, but they have to pay very high revenue. Okay, very high, क्योंकि Monroe system में क्या था, the revenue that was fixed very high. They have to pay very high land revenue. And second point, the peasants, they were unable to pay. Why they were unable? Because they were paid very less for their crops.
So they were unable to pay that high land revenue. And in the third point, you can write that the peasants, they started deserting the villages. Okay? Because now they were not finding it beneficial for growing the crops. So these 3 points are clear to everyone? Yes, bache, these 3 points are clear. So now, one question that is left, 6th question. So these questions we will do from this chapter. Why were ryots reluctant to grow indigo? That we have also discussed in here in this point only. Why were ryots reluctant to grow indigo? Yes, Samiksha. The ryots were reluctant to grow indigo for the below given reason. They were paid very low prices for it. The ryots never saw any profit occurring from the indigo plantation. Ryots were asked to grow indigo on the fertile parts of the land by the planters, which they were apprehensive about. Okay, good. So why ryots denied to grow indigo? They were reluctant. Reluctant means they were denying to grow indigo. Why they were denying? Because they were getting very less price for their crops. Okay? And they have trapped in the cycle of loans. They don't want to grow indigo because they were having no profit at all. Okay? And they want to grow rice on the fertile soil. But planters, they were forcing them to grow indigo in the fertile soil. Okay. Yes, Nandini, you can repeat the answer. Yes, ma'am. They were paid very low prices for it. The ryots never say any profit occurring from the indigo plantation. Ryots were asked to grow indigo on the fertile parts of their land by planters, which they are apprehensive about. Okay, good. So these are about this chapter and the question answers. Okay, so you will write question number 3, 4, 5, 6, 7. Okay, in your notebooks. And all the answers that you have to write in points. Don't write paragraphs, write the points, leave lines after every question, and write your questions very neatly and creatively in your notebook. Okay, so if there is any query that you can write. Yes, Akul, these points are also okay. That they were trapped in the cycle of loans. So these are all the points that we have discussed. So these are all the points. So, okay, any other? So, okay, so I hope all the chapters and these question answers are clear to you. Okay, so complete your work, revise the chapter thoroughly. Okay, then, thank you, students. Take care.